Next topic is mass pulley concept. Mass pulley concept. Screen is visible to all. Yes, sir. Two masses, capital M and small m, are connected at two ends of inextensible string. This is a string. This is a string. Inextensible string. The string passes over a smooth frictionless pulley. This is a pulley. ये स्ट्रिंग इस तरह से पास करता है, स्मूथ फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुल्ली. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ masses and tension in the string given capital mass is greater than small mass m. We have to calculate acceleration A and tension T in the string. This is my question. So this is a capital mass. If this is a capital mass, then its weight is always in the vertical downward direction. W is equal to capital M into G, and this is small m having mass m, and weight is also in the downward direction due to gravity weight. Tension. What is tension? Tension is a force away from the mass. Force away from mass. Away from mass. This is also a force, tension. This is the tension T. This is also the tension T away from the mass. Along both sides of the pulley, the tension will remain same. This is not that this is T1 and this is T2. When the system is in motion, then tension along both sides will remain same. Note this point. This is an important point, right? When system is in motion, when system is in motion, along both sides of pulley, along both sides of pulley, tension is same. Tension T same. This is not different, right? During motion. Now this is given in the question that capital M is greater than small m. Capital M is greater than small m. If capital M is greater than small m, then what happened? This mass capital M moves down. Capital M moves, yeah, where accelerates. Down. If capital M moves down with acceleration, same time the small m also moves with the acceleration in the upward direction. We will talk about the small m later. First of all, I have considered this. Capital mass M moves or accelerates downward. If capital M moves downward, then it is the fact that mg must be greater than this, a downward force. This is mg. Mg downward, capital Mg downward, and above side that is tension T. If this is capital M, so Mg must be greater than tension T. Mg, finally Mg minus tension T. Mg, this is a weight, this is a force. Suppose that this is a 3 Newton. Suppose that tension is 2 Newton. अगर ये ज्यादा है और ये कम है, तभी मास कैपिटल एम मूव करेगा डाउन. एंड 3 minus 2 is equal to 1 न्यूटन. बेटा, एम आई राइट? रिप्लाई कीजिए. Yes, sir.
तो force minus force is another force, that is its mass into acceleration A, that is 1 Newton. ये है 1 Newton, mass into acceleration. ये स्टेप समझ में आ गया? रिप्लाई करो बेटा, रिप्लाई कीजिए. Yes, sir. Now if mass m moves, capital M moves down, same time the small mass moves up with the acceleration A. This is a tension T, this is a small m, its weight is small mg, it will accelerate up. So m, small m moves, accelerates up, it means T must be greater than mg. अब आप में से कोई बच्चा मुझे इक्वेशन लिखवाए, क्या इक्वेशन बनेगा? Sir, T minus mg is equal to ma. T minus mg is equal to small mass into its acceleration. Equation number second. राइट, ये दोनों इक्वेशंस हमने फ्रेम कर ली. मेरा क्वेश्चन है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, हमें टेंशन भी निकालना है. एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए ऐड इक्वेशन नंबर 1, ऐड 1 and 2, एडिशन कर दो इनका. तो इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड है, फर्स्ट का mg माइनस टी, और इसका है प्लस T माइनस mg इज इक्वल टू, राइट साइड है कैपिटल M इंटू ए, और ये स्मॉल m इंटू ए. T से T कट जाएगा, कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m into acceleration. Moreover, m minus m into g is equal to m plus m into a. Acceleration is finally equal to m minus m divided by m plus m into g. This is the final expression. Keep in mind to solve the numerical concept. अगर आपको numerical solve करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. This is the acceleration expression for the acceleration if capital M is greater than small m. Capital M moves down with acceleration a, and same time the mass small m moves up with the acceleration a. Now look at the concept. Let us suppose that let capital M is equal to 5 kg, small m is equal to 2 kg. Then what is the relationship between acceleration and g? A is equal to 5 minus 2 divided by 5 plus 2 into g. X 5 minus 2, that is equal to 3 divided by 7 into g, which implies acceleration is equal to, what is the value of 3 divided by 7? What is the value? 0.4. कितना बोला आपने? 0.4. ओके, इसको और तरीके से सॉल्व कर लेते हैं. ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8. अगर मैं ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लेता हूं, यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए 10 ले लेते हैं. Let us suppose that g is equal to 10 into 10 divided by 2 is equal to कितना है? 10 डिवाइड में 7 है भाई, डिवाइड में 7 है, 2 नहीं है.
30 डिवाइड बाई 7, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा? 4.2. 4.2 approx. 4.2 4.2. 4.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है? ग्रेविटी का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है? ग्रेविटी का 9.8। 9.8. आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया यहाँ पे कि एक्सेलरेशन इज लेस देन जी ऑलवेज। मास पुल्ली कॉन्सेप्ट में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज लेस देन जी। जी से ज्यादा नहीं, उसका जी हमेशा बड़ा रहेगा। ग्रेविटी Excuse me, sir. ग्रेविटी के अंडर ही एक्सेलरेशन रहेगा। यस, एनी क्वेरी? सर जो हमारा सर स्मॉल जी होता है सर, वो भी तो एक एक्सेलरेशन ही होती है ना? हाँ, स्मॉल जी भी एक्सेलरेशन होता है, लेकिन मेरे बोलने का मतलब है स्मॉल जी का वैल्यू कितना है? 9.8। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गरीब बॉय। हमारी कैलकुलेशन में कितना आंसर आया? 4.2, और 9.8 ज्यादा है, और 4.2 इज लेस देन 9.8, राइट? एक्सेलरेशन इज लेस देन जी। सर ये हर जगह एप्लीकेबल। ओके बेटा? सर ये हर केस में होगा एप्लीकेबल, की इसी में ही है। In every case, whenever mass pulley concept is there and a big mass is moving downward with acceleration A, small mass moving up, then always acceleration is less than gravity. यस Right? काव्या, आपको बहुत बार समझाया गया, लेकिन आपका माइक फिर ऑन है। अब बेटा मेरा दूसरा क्वेश्चन है, टेंशन निकालिए, यहां से टेंशन निकालिए। टेंशन निकालने के लिए ऐसा करो, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज 1 का है mg माइनस टी लेफ्ट साइड, और ये t माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू राइट साइड है ma डिवाइड बाई स्मॉल ma। एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट जाएगा, और ये बचेगा कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। कैपिटल M स्मॉल mg माइनस tm, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। tm माइनस स्मॉल m कैपिटल mg, which implies कैपिटल M स्मॉल mg। इसको इधर ले आए, प्लस में हो जाएगा, प्लस स्मॉल m कैपिटल mg, इसको इधर ले जाए, tm प्लस में हो जाएगा, प्लस t कैपिटल M इज इक्वल टू 2m g इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M इंटू t। टेंशन यहां से निकल जाएगा 2 mg mmg डिवाइड बाई m प्लस स्मॉल m। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टेंशन। एनी डाउट? रिप्लाई करो, एनी डाउट? No, sir. Let's have a numerical of the same concept. This is a mass pulley concept. इसको Atwood's मशीन भी बोलते हैं, Atwood's मशीन। अब क्वेश्चन है, if the system starts from rest, what is the speed and distance moved by the mass at time t is equal to 3 सेकेंड, और गिवन है मेरे पास this is 10 kg and this is
इसको ये 12 है, दिस इज नॉट 10, 12 kg एंड दिस इज 10 kg। 12 kg डाउन मूव करेगा तो ये अप मूव करेगा, दिस इज अ टेंशन T, दिस इज ऑल्सो टेंशन T, it will move with down acceleration A, it will move with acceleration A। हमारा क्वेश्चन है स्पीड निकालिए, डिस्टेंस निकालिए, कब? 3 सेकंड में। स्पीड निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास v इज इक्वल टू u प्लस at। सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब u इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, तो मेरे पास वेलोसिटी निकलेगी 0 प्लस at के बराबर। वेलोसिटी इज इक्वल टू a इंटू टी। लेकिन मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है, मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अभी आपने एक फॉर्मूला किया एक्सेलरेशन का, टेल मी द फॉर्मूला। फॉर्मूला Sir, acceleration is equal to, sir, capital M minus small m upon capital M plus small m into gravity G. into g। Let us suppose that capital M here is 12 kg, small m is equal to 10 kg। एक्सेलरेशन आ जाएगा 12 minus 10 divided by 12 plus 10 into gravity। 12 minus 10 that is equal to 2 divided by 22 into gravity is 9.8। Tell me the answer, कैलकुलेशन करके आंसर बताओ। What is the answer? Sir, 0.8. 0.89। 8. एक्सेलरेशन मेरे पास निकल गया, वेलोसिटी में निकाल सकता हूं 0.89 इंटू टाइम इज गिवन 3 सेकेंड, यूनिट बन जाएंगे मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बताइए कितना आएगा कैलकुलेशन करके। Sir, 2.67. 2.67। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे पास। वेलोसिटी ऑफ स्पीड हमने निकाल, डिस्टेंस पूछा है x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। as you know that u is equal to 0, system starts from rest, this is equal to 0, x is equal to half at square, put all the values and tell me the answer। distance Sir, 4.005 meter. 4.005 meter, it is approximately equal to 4 meter। आंसर ओके बेटा, अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आ गया? Yes. दिस इज नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें देखो मास पुल्ली भी है और कनेक्टेड मोशन भी है इसमें, और जो है न्यूटन जो लॉ किया था आपने सेकंड लॉ का एप्लीकेशन हॉर्स कार्ट कॉन्सेप्ट में भी आ जाता है। दोनों का मिक्स न्यूमेरिकल है। राइट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नोट करो एंड वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। M1 mass is placed on the table. A mass 10 kg is placed on, this is a mass 10 kg placed on horizontal table.
it is tied to a string which passes over a frictionless pulley. This is a pulley, this is a string, a tension T away from the mass. On the other end, the string of mass M1 5 kg, string of mass M1 5 kg, 5 kg मास लगा हुआ है. M1 गलत लिखा है इसने, M2 लिखना चाहिए था इसको. M2 5 kg, एक 10 kg है तो एक 5 kg है. M2 जो है 5 kg है. What is the acceleration produced in the bodies when the nail fixed on a table is removed? यहाँ पे कोई नेल फिक्स करी है, नेल, तो ये मास जो है रेस्ट पे है. जब इस नेल को रिमूव किया जाएगा तो मास M2 डाउन आएगा विद एक्सेलरेशन ए, इसका टेंशन अपवर्ड, और ये मास इधर मूव करेगा सेम टाइम विद एक्सेलरेशन ए. ये क्वेश्चन है. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? रिप्लाई करो. क्वेश्चन समझ में आ गया? रिप्लाई करो बेटा. Yes. यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे. व्हेन द नेल फिक्स्ड ऑन द टेबल इज रिमूव्ड, तो क्या हुआ? M2 moves down with acceleration A, राइट, और M1 इधर मूव करेगा हॉरिजॉन्टल साइड विद एक्सेलरेशन A. तो ये तभी मूव करेगा अगर इसका वेट क्या है? M2G. M2G देखो, इक्वेशन बनाना है मुझे. पहले इस मास M1 को देखो, दिस इज अंडर द एक्शन ऑफ कितनी फोर्सेस के बीच में है? ये जब रेस्ट पे है सिस्टम तो कितनी फोर्स लगी हुई इसके ऊपर? इसका वेट mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है इसको, इधर टेंशन T लगी हुई. तो मैं फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूं इसकी इक्वेशन. देखो M1 जब इधर M1 और M2 दोनों मूव करेंगे, M1 और M2, M1 plus M2, they will move simultaneously with acceleration A. Mass into acceleration is equal to, क्यों हुआ ये? Why this happen? M1 plus M2 moving down with acceleration due to M2G. Due to M2G, ये जो M2G डाउन है इसके कारण हुआ ये. It is equal to M2G. ये क्वेश्चन आया. रिप्लाई करो. ये क्वेश्चन समझ में आ गए? सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट यूज किया मैंने. अंडरस्टैंड बेटा? रिप्लाई कीजिए. मैं आगे नहीं चलूंगा जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे. Yes, sir. सो एक्सेलरेशन M2 divided by M1 plus M2 into G. Put all the values and tell me the answer of acceleration. M2 आपके पास है 5, ग्रेविटी है 9.8. दिस इज, ये M1 10 है प्लस 5. आंसर बताइए कितना आएगा? Sir, 3.26. 3.26. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 की जगह 7 कर लेते हैं राउंड अबाउट में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, निकाल दिया. टेंशन देखो, जब ये मास इधर मूव करेगा तो टेंशन T1, ये जो T1 नहीं है, T है सिर्फ. पुल्ली के दोनों साइड जो है, जब ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं, along both side of the pulley tension is same during motion. मैं लिख देता हूं ये बात, during motion
during motion, tension along both side of pulley is same. जब मोशन में है, जब मोशन में नहीं होगा तो नहीं होगा सेम. अब टेंशन यहां से क्या निकल जाएगी? टेंशन फोर्स है, फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास किसका? m1, एक्सेलरेशन इसका a, तो टेंशन यहां से निकल जाएगा. बताइए कितना है? 10 इंटू एक्सेलरेशन 3.27. व्हाट इज द टेंशन? 32.7. 32.7 न्यूटन. ये मेरे दूसरे पार्ट का आंसर आ गया. व्हाट विल बी द टेंशन? व्हाट क्या होगा व्हेन द बॉडी स्टॉप? जब सिचुएशन रेस्ट पे आ जाएगी तो क्या होगा? This is the answer. When the body stops, which implies acceleration is equal to 0. उस टाइम ये टेंशन और ये टेंशन बराबर नहीं होगी. इसको मैं टी डैश मान लेता हूं, टी डैश. और इसका डायग्राम ये बनाया है अलग से. सिस्टम रेस्ट पे है. टी डैश इज इक्वल टू m2g. द फोर्स टी डैश इज बैलेंस्ड बाय द वेट m2g. दिस इज अ न्यूटन थर्ड लॉ. एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो टेंशन चेंज हो जाएगा ये, और टेंशन का वैल्यू कितना आएगा? टेंशन टी डैश इज इक्वल टू m2 इज 5, ग्रेविटी इज 9.8. दोनों के यूनिट बनेंगे न्यूटन. नाउ व्हाट इज टी डैश? So 49. 49 न्यूटन. Newton. So this is the concept. Let us have another numerical. We have 5 minutes left. I will frame the diagram. This is a horizontal surface. This is a wall. This is a block. This is a hook. This is a string. This is a pulley. और ये स्ट्रिंग ऐसे. This is a block, pulley, rigid wall. क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास 100 kg, इसका मास 100 kg है, is set into motion on an frictionless horizontal surface with the help of a frictionless pulley and a rope as shown in the diagram. What horizontal force should be applied to produce in the block with acceleration? बोलता है कितनी फोर्स लगाई जाए यहाँ पे कि इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितनी आ जाए? एक्सेलरेशन आ जाए 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज अ क्वेश्चन. We have to calculate. Mr. Kavya, don't dare to write anything on my screen.
otherwise I will kick you out. Acceleration is 10 centimeter per second square. और ये मेरा क्वेश्चन है, फोर्स बताइए कितनी फोर्स लगाओगे आप, तो बताइए। अगर ये फोर्स देखिए, ये फोर्स एफ है, तो जो है जब मोशन में आएगा ब्लॉक तो दोनों साइड टेंशन बराबर होती है, ऐसे हम टेंशन लेते थे, तो ये मैं फोर्स ही लूंगा, फोर्स, राइट, फोर्स ही लूंगा। और इधर 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 लग रही है टेंशन टी, टी, तो फोर्स प्लस फोर्स, ट्वाइस द फोर्स इज इक्वल टू टेंशन, ट्वाइस द फोर्स इज इक्वल टू टेंशन। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई यहां से। और जब ये टेंशन इधर लग रही है तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा इधर, इसका मास m है, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इक्वेशंस बन गई मेरे पास। तो टेंशन को मैं यहां से निकाल दूंगा इसी इक्वेशन से, टेंशन इज इक्वल टू मास कितना है 100, एक्सेलरेशन इसने क्या रखा है कितना है 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एसआई यूनिट में बताइए जरा, एसआई यूनिट में कितना बन जाएगा ये 0.1 और टेंशन, ये टेंशन आ जाएगी 10 न्यूटन, टेंशन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। और मेरे पास यहां से फोर्स भी निकल जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू टेंशन डिवाइड बाई 2 is equal to 10 Newton divided by 5 is equal to 10 divided by 2 not 5 is equal to 5 Newton. This is also a good question. क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूं मैं। ये लगा हुआ है फोर्स, ये पुल्ली, फ्रिक्शनलेस पुल्ली, राइट। जब आप ये फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियस है ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होंगे, ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा तो यहाँ टेंशन, ये टेंशन टी, राइट। मैंने फोर्स प्लस फोर्स क्या इक्वेशन बनाई, ट्वाइस द फोर्स इज इक्वल टू टेंशन, राइट। इधर लेफ्ट फोर्स, टोटल लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू टोटल राइट फोर्स, ट्वाइस द फोर्स इज इक्वल टू टेंशन। दूसरा, जब ये ब्लॉक मूव करेगा, जब ब्लॉक मूव करेगा भी लेफ्ट साइड तो टेंशन इज इक्वल टू इट्स मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन, राइट। टेंशन मास इसका 100 है, एक्सेलरेशन इसका 0.1 है, और मेरे पास टेंशन का आंसर आ गया 10 न्यूटन, राइट। आ गया 5 न्यूटन। एनी क्वेरी? एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने इक्वेशन 2f इज इक्वल टू t बनाई थी, तो नीचे आपने m f की वैल्यू पुट